Hello, dear children. How are you all? I think you all are happy and safe at your homes. So, let's start today's class. And here we will discuss a very interesting chapter from your Moments book, that is The Happy Prince. And I'm sure you will enjoy it with me. First of all, let's have a look at the narrator. So, Oscar Wilde, the story is written by Oscar Wilde, and the full name of Oscar Wilde is Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. He was born on 16th October 1854 and died on 30th November 1900. Was an Irish poet. So, Oscar Wilde was an Irish poet and a playwright, and he was known for his biting wit, flamboyant dresses. Flamboyant means you can say tending to attract somebody's attention, किसी की attention को अपनी तरफ आकर्षित करना, ऐसा उनका ड्रेसिंग सेंस था. एंड ग्लिटरिंग कॉन्वर्जेशनल स्किल, उनमें बहुत ही अच्छी कॉन्वर्जेशनल स्किल थी, बहुत अच्छा बात करने का तरीका बहुत शानदार था. Wilde became one of the best known personalities of his day. Means वाइल्ड जो थे, ऑस्कार वाइल्ड अपने टाइम की बहुत ही बेस्ट नॉन पर्सनालिटी, मीन्स बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे, अपने टाइम की बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे. So let's have the introduction of this chapter, then we will go for the summary. Okay, so the story is about a prince. एक prince की story है. When the prince was alive, he was very happy. जब वो alive था, जिंदा था, वो बहुत happy था. After his death, a big statue of his was erected on a pedestal, and उनकी death के बाद उसका एक बहुत ही बड़ा statue जो है वो erect किया गया. Erect means खड़ा किया गया, बनाया गया on a pedestal. Now what is this pedestal? Guys, pedestal you can say a base or a support on which a statue or column is mounted, जिस पे कोई statue खड़ा किया जाता है, like this base, किसी भी चीज का ऐसा base, and इस पे कोई भी statue खड़ा किया जाएगा like this. Okay, so this is called pedestal. From there, the statue of Prince could see the entire city, and at that time he saw the miseries of the people. So वहाँ से वो जो statue था वो पूरी city को देख सकता था. Entire means whole, सारी city को. And at that time he saw, और वो क्या देखते थे वहाँ से? Miseries of the people. Miseries का मतलब होता है दुख. He saw the poor people, the homeless, their hunger and starvation. तो जिन people, जो people poor थे, गरीब थे, जो जिनके पास घर नहीं थे, जो भूखों मर रहे थे. starvation का मतलब क्या होता है? भूख. Okay, hunger means भी भूख, भूखे मरना. तो the prince was sad to see all these miseries, sadness of the people. तो जो प्रिंस थे वो बहुत ज़्यादा दुखी होते थे ये सारी लोगों के दुखों को देख के. मिजरीज मीन्स sorrows of the people. SORROWS, sorrows of the people. So in this chapter we will study the story of this prince. So let's start the summary. Statue of the Happy Prince. First of all, here we will discuss about the statue. There stood the statue of the Happy Prince on a tall column in the city. तो उस city में एक बहुत ही बड़ा स्टैचू इरेक्ट किया गया था. किसका? हैप्पी प्रिंस का. सो ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर. चारों तरफ से वो क्या था? गिल्डेड. गिल्डेड मीन्स कवर्ड. सो टॉल कॉलम पे, टॉल कॉलम मीन्स एक हाई पिलर पे. टॉल कॉलम मीन्स हाई पिलर. HIGHPILLER. हाई पिलर पे एक बहुत ही बड़ा स्टैचू इरेक्ट किया गया था. दैट वॉज गिल्डेड ऑल ओवर. गिल्डेड मीन्स कवर्ड विद गोल्ड, जो कि कवर्ड था किससे? गोल्ड से. ही हैड थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, एंड उनके चारों तरफ क्या कर रखी थी? पतली पतली गोल्ड की पत्तियां डेकोरेट कर रखी थी. ही हैड 2 bright sapphires of for eyes. एंड जहाँ पे आईज थी, आईज की जगह पे क्या लगा हुआ था? ब्राइट स्फायर्स लगे हुए थे. स्फायर्स का मीन्स होता है ब्लू कलर के स्टोन्स लगे हुए थे उनकी आईज की जगह पे. एंड
a large ruby glowed on his sword hilt, और जहाँ पे उन्होंने तलवार पकड़ी हुई थी, तलवार का जो हिल्ट था, हिल्ट का मीन्स होता है हैंडल, तो तलवार के हैंडल पे क्या था, रूबी लगे हुए थे. What do you mean by this word ruby? Ruby is another precious stone. So sapphires कहाँ पे थे उनकी eyes पे, and rubies कहाँ पे थे, जो उनकी स्वॉर्ड थी, स्वॉर्ड यानी तलवार थी, तो तलवार पे क्या लगे हुए थे, बड़े बड़े उसके रूबीज लगे हुए थे. नेक्स्ट, अ लिटिल स्वैलो सिट्स ऑन द स्टैचू, एक स्वैलो उड़ करके आई, स्वैलो मीन्स अ बर्ड, उड़ करके आई, एंड केम सैट ऑन द स्टैचू, वो स्टैचू पे बैठ गई. He decided to spend the night on it, and स्टैचू पे, स्टैचू के नीचे उस बर्ड ने डिसाइड किया कि वो अपनी नाइट वहीं पे स्पेंड करेगा. उस बर्ड ने कहा, बट एज ही वॉज गोइंग टू स्लीप अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, तो जैसे ही वो सोने के बारे में सोचने लगा वो बर्ड, क्या हुआ, द स्वेलो वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड. वाई, देयर वॉज नो क्लाउड येट इट रेन्ड, तो क्या था वहां पे, क्लाउड्स तो थे नहीं, बादल तो थे नहीं, तो बारिश कहाँ से आ रही है. द सेकेंड ड्रॉप ऑफ वाटर मेड द स्वेलो डिसाइड टू फ्लाई ऑफ, और जैसे ही सेकेंड बूंद पड़ी तो स्वेलो ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, वो उड़ के कहीं और चला जाएगा. द थर्ड ड्रॉप ऑफ वाटर मेड हिम टू लुक एट द स्टैचू. व्हेन द थर्ड ड्रॉप वॉज फॉलिंग, he looked at the statue, उसने स्टैचू की तरफ देखा, and the statue was weeping. So why was the statue weeping? The statue was weeping to see the miseries of the people. जो स्टैचू था वो क्यों रो रहा था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे दुख नजर आ रहे थे, क्योंकि वो जो स्टैचू बना हुआ था पेडेस्टल पे, वो बहुत हाई पिलर पे बना हुआ था, जहां से वो पूरी सिटी को देख सकते थे. The statue spoke to the swallow. It said that when it was alive, it had not known what tears were. तो स्टैचू ने उसको बताया, बर्ड को, जब वो जिंदा था, जब वो अलाइव था, तो उसको ये नहीं पता था कि टीयर्स क्या होते हैं. His courtiers called him a happy prince. इसलिए जो दरबारी थे, जो कॉर्टियर्स थे, उस किंगडम के राजा के दरबार में जो कॉर्टियर्स थे, उन्होंने क्या उसको, वो सब उसको क्या बोलते थे, प्रिंस को हैप्पी प्रिंस. Now he sat very high. He saw the miseries of the city. अब वो क्या है, बहुत हाई, उस पे बहुत ही हाई जगह पे है, जहां से वो क्या देख सकता है, सबकी मिजरीज को देख सकता है. मिजरीज यानी दुख. द स्वेलो इज सेंट टू हेल्प अ woman. Now the happy prince told the swallow that there lived a woman far away. तो happy prince ने swallow यानी उस bird को क्या बोला कि वहां पे एक बहुत दूर एक woman lives there, वहां पे एक woman रहती है. She was a seamstress. seamstress मतलब एक lady tailor. वहां पे एक लेडी टेलर है. शी वॉज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर ऑन द सेटिन गाउन ऑफ क्वींस मेड ऑफ ऑनर, यानी कि क्वीन की एक बहुत ही, उसकी जो मेड है वो क्या कर रही है, उसके लिए सीम स्ट्रेस जो है वो सेटिन गाउन पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है. उस एम्ब्रॉयडरी में क्या ड्रॉ कर रही है, फ्लावर्स बना रही है, कढ़ाई कर रही है. मतलब द मेड वॉज टू वियर इट एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल. एंड वो मेड कब पहनने वाली है उसको, जो कोर्ट में एक बॉल डांस जो होता है उस टाइम वो उसको पहनने वाली है. इन द बेड देयर ले इल हर लिटिल बॉय. और सीमस्ट्रेस को कंप्लीट करना पड़ेगा वो गाउन बहुत जल्दी जल्दी, पर क्या है वहां पे प्रॉब्लम, उसका जो लिटिल बॉय है, उसका जो बेटा है, वो क्या है, बीमार है और बेड पे लेटा हुआ है. बट दैट सीम स्ट्रेस डजंट हैव टाइम. उस सीम स्ट्रेस के पास टाइम नहीं है कि वो अपने बेटे को देख सके. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड उसको फीवर है. द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू पिक द रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड हिल्ट. तो हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को क्या ऑर्डर दिया कि यू पिक दिस रूबी फ्रॉम माय स्वॉर्ड हिल्ट. स्वॉर्ड हिल्ट मतलब जो उसकी तलवार थी, तलवार का जो हिल्ट, हिल्ट यानी कि हैंडल, उस हैंडल से वो जो प्रीशियस स्टोन लगा हुआ है रूबी, उसको निकाल के ही शुड गिव दैट टू द वुमन. वो किसको दे दे, उस वुमन को दे दे, ताकि उस वुमन की थोड़ी सी हेल्प हो जाए. So the swallow helps the woman.
फर्स्ट द swallow said that his friends had gone to Egypt. लेकिन सबसे पहले swallow ने क्या बोला कि उसके फ्रेंड्स जो हैं, swallow जो बर्ड है उसके फ्रेंड्स कहाँ पहुंच चुके हैं, सब इजिप्ट पहुंच गए हैं. He was waited for in Egypt and इजिप्ट में swallow का वेट हो रहा है. बट द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे वन नाइट. लेकिन हैप्पी प्रिंस ने उसको बर्ड को रिक्वेस्ट किया कि आप एक नाइट के लिए यहाँ पे रुक जाओ. द स्वैलो एग्रीड. वो जो स्वैलो बर्ड था वो एग्री हुआ. ही पिक्ड अप द रूबी एंड फ्लू टू द वुमन्स हाउस. तो उसने क्या किया, ही पिक्ड अप द रूबी, उसने रूबी को लिया एंड फ्लू टू द वुमन्स हाउस, वुमन के हाउस पे उड़ गया, वुमन के हाउस तक चला गया उड़ के. ही पुट द रूबी नियर द वुमन्स थिम्बल. तो उसने क्या किया, वो जो रूबी था वो रूबी वुमन के पास रख दिया. थिम्बल क्या चीज होती है, अ मेटल और अ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट दैट यू वियर ऑन द एंड ऑफ योर फिंगर टू प्रोटेक्ट इट व्हेन स्यूइंग. जब भी हम कुछ स्यूइंग कर रहे होते हैं, कुछ सिल रहे होते हैं, तो अपनी फिंगर को बचाने के लिए, यानी कि अपनी फिंगर पे ताकि सुई ना लगे, इसलिए जो एक चीज होता है, या तो वो मेटल का होता है या फिर वो प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम अपनी फिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं. तो उस वुमन की जो थिम्बल थी उसके पास उसने वो रूबी को रख दिया, प्लेस्ड देयर. He also fanned the boy's forehead. And boy का जो forehead था वो बहुत ज़्यादा तप रहा था. किससे गर्म हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्यों? Because he was suffering from fever. तो उसने क्या किया, उस पर फैन कर दिया, हवा चला दी थोड़ी सी. The boy felt a bit better. अब वो जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा फील करने लग गया. He sank into a deep slumber. Slumber means अच्छी नींद, state of स्लीप. तो वो बहुत अच्छी नींद लेने लग गया. कौन? दैट बॉय ऑफ दैट seamstress. नाउ द swallow flew बैक टू द हैप्पी प्रिंस. अब वो जो swallow था वो वापस कहाँ गया, हैप्पी प्रिंस के पास गया. ही फेल्ट वार्मर थ्रू दो इट वॉज कोल्ड. नाउ वन थिंग यू सी, अब क्या था, अब चारों तरफ बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन जो बर्ड था, बर्ड को क्या फील हो रहा था, वार्मथ फील हो रही थी. चारों तरफ तो कोल्ड था, लेकिन उस बर्ड को गर्मी क्यों फील हो रही थी, वार्म क्यों फील हो रहा था, क्योंकि उसको खुशी थी कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है. द हैप्पी प्रिंस टोल्ड हिम दैट इट वॉज बिकॉज ही हैड डन अ गुड एक्ट. अब हैप्पी प्रिंस ने उस बर्ड को बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा है, तुम वार्मथ इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है. द स्वैलो वॉन्टेड टू फ्लाई इजिप्ट. स्वैलो को कहाँ जाना था, इजिप्ट जाना था. बट द हैप्पी प्रिंस टोल्ड हिम टू स्टे देयर वन मोर नाइट. लेकिन हैप्पी प्रिंस ने उसको क्या किया, रिक्वेस्ट किया टू स्टे देयर, कि वो वहां पे रहे एक और नाइट के लिए. He told the swallow that he saw a playwright in a little room. उसने किसको देखा है, एक playwright को देखा है. playwright का मीन्स क्या होता है, a person who writes plays. So उसने किसको देखा, एक playwright को देखा, एक नाटककार को देखा. तो वो playwright क्या है, he was trying to finish a play to the director of the theater. and वो try कर रहा है कि वो क्या करे, एक प्ले लिख के तैयार कर दे डायरेक्टर ऑफ द थिएटर. थिएटर के डायरेक्टर ने उसको क्या बोला है, कंप्लीट इट. ओके, बट ही वॉज टू कोल्ड टू राइट. लेकिन वो जो प्ले राइट है, जो प्ले राइटर है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है. एंड वो उसको इतनी ठंड लग रही है कि वो उसके लिए लिखना पॉसिबल नहीं है. ही वॉज हंग्री ऑल्सो. और वो बहुत ज़्यादा भूखा भी है, हंग्री भी है, एंड फीलिंग टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है. He asked the swallow to pluck one sapphire from his eye and give that to the playwright. तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो क्या निकाल ले, वो जो वन सफायर है उस सफायर को निकाल ले, ताकि किसको दे सके, उसको दे सके उस प्ले राइटर को, so that he could keep himself warm, ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके. सो द प्ले राइट सॉ द सफायर. प्ले राइट ने क्या किया, वो जो सफायर था उसको देखा. ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ. नाउ ही होप्ड टू फिनिश द प्ले. अब उसको ये लग रहा था कि हाँ, अब मैं ये जो अपना प्ले राइट जो राइट कर रहा था,
लिख रहा था उसको वो टाइमली पूरा कर लेगा. द swallow went to the happy prince. He told him that he had come to bid him goodbye. अब स्वैलो ने जब अपना काम पूरा किया तो उसने क्या बताया, उसने बोला कि वो वहां पे आया है किस लिए, वो हैप्पी प्रिंस को गुड बाय कहने आया है. बट द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड हिम टू स्टे वन मोर नाइट. लेकिन हैप्पी प्रिंस ने उसको क्या बोला, टू स्टे देयर, कि वो वहां पे रहे एक और रात के लिए. सो व्हाट हैपेंड, द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वैलो दैट देयर वाज अ लिटिल मैच गर्ल इन द स्क्वायर बिलो. वहां पे कौन रहती है, एक छोटी सी मैच गर्ल है. एंड दैट मैच गर्ल विल ऑल्सो बी इन प्रॉब्लम, वो भी शायद क्या कुछ प्रॉब्लम में होगी. दैट्स वाई हर फादर वुड बीट हर. अच्छा, मेन प्रॉब्लम क्या थी, हर मैचेस हैड फॉलन इन द गटर. उसके पास जितनी भी मैच स्टिक्स थी वो सारी कहाँ पे गिर गई थी, गटर में गिर चुकी थी. एंड उसके जो फादर हैं वुड बीट हर, उसको मारेंगे अगर इफ शी डिडंट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो ये बता देगी कि मेरी जो स्टिक्स हैं, मेरी जो मैच स्टिक्स हैं वो सब किस में गिर गई थी, वो तो वाटर में गिर गई थी. एंड आई डोंट हैव एनीथिंग, मैंने कुछ भी मनी अर्न नहीं किया तो मुझे डांट पड़ेगी. सो उसने क्या किया, उसने बोला ही आस्क्ड द स्वैलो टू प्लक आउट फायर फ्रॉम हिज आई एंड गिव दैट टू हर. और उसने वो फायर निकालने को बोला सो दैट द प्रिंस कुड हेल्प द लिटिल गर्ल. द स्वैलो फ्लू विद द सफायर. स्वैलो ने वहां से सफायर निकाला, वो ब्लू कलर का जो स्टोन था उसको निकाला एंड gave to the match girl. He put the sapphire into little girl's hands, और उसके hands पे रख दिया. Now the swallow flew back to the prince. He told the prince that he would stay with him as he had gone blind. Now अभी देखिए, अभी तक क्या था, उस स्वैलो को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि मेरे फ्रेंड्स इजिप्ट में मेरा वेट कर रहे हैं. लेकिन अब स्वैलो जो बर्ड था उसने बोला हैप्पी प्रिंस को कि आपने अपने आईज के सफायर्स जिनसे तुम देखते थे वो तो आपने क्या कर दिए, चैरिटी कर दी, उससे तो आपने दान कर दिए, वो तो लोगों की हेल्प करने के लिए. नाउ यू हैव गॉन ब्लाइंड, लेकिन अब आप क्या ब्लाइंड हो चुके हो, अब आप कैसे सारी चीजें देखोगे. सो आई वुड नॉट गो एनीवेयर, आई विल स्टे विद यू, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा. द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड हिम to fly over the city and tell him what he saw. And हैप्पी प्रिंस ने बोला कि आप सिटी में सब तरफ उड़ के देखना, तुमने क्या क्या तुमने देखा वो सब मुझे बताना. He also told the swallow that the most marvelous thing was human suffering. सबसे शानदार चीज क्या है, humans की sufferings, and human misery was greatest misery. And humans जो उनके जो दुख होते हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्ट्री है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको दुख भी होते हैं, बहुत ज़्यादा वो उनमें बहुत ज़्यादा सफरिंग्स भी होती हैं. सो दिस वॉज द कॉन्वर्जेशन बिटवीन द स्वैलो एंड द प्रिंस. सो अब स्वैलो जो भी वहाँ पे देखता वो बर्ड, वो सारी रिपोर्ट किसको देता, Happy Prince को. Reports what he sees. The swallow flew over the city. He saw hungry children. He also saw many poor people. The Happy Prince asked him to take leaf after leaf of the fine gold over his body and give to them. अब as you know that the statue was covered with gold, और उस पे डेकोरेशन के लिए क्या थी, लीव्स लगी हुई थी, गोल्ड की लीव्स. सो उन सब को, उन पुअर पीपल, हंग्री चिल्ड्रन को हेल्प करने के लिए स्वैलो क्या करता, वन बाय वन वहां से लीफ निकालता एंड उन पीपल को हेल्प करने के लिए दे देता. द पुअर लाफ्ड एंड द चिल्ड्रन प्लेड. एंड हेल्प करने से क्या था, पुअर पीपल के फेस पे स्माइल आती एंड चिल्ड्रन हैप्पी, चिल्ड्रन भी हंसी खुशी से खेलते थे. सो नाउ व्हाट हैपेंड, देन देयर केम द स्नो एंड देन फ्रॉस्ट. अब वहाँ पे धीरे धीरे क्या आ गई, धीरे धीरे ठंड आने लग गई. एंड यू नो वेरी वेल, जब ठंड होती है तो बर्ड्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, गर्म जगह पे चले जाते हैं. सो एज द विंटर स्टार्टेड द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर. डे बाय डे उसको बहुत बहुत ज़्यादा ठंड लगना शुरू हुई. बट ही डिडंट लीव द हैप्पी प्रिंस, लेकिन उसने हैप्पी प्रिंस को छोड़ा नहीं.
However, he could no longer keep himself alive. जबकि उसके साथ ऐसा था, वो अपने आप को अब तो जिंदा भी नहीं रख पाता, क्योंकि विंटर्स में क्या करते हैं, बर्ड्स शिफ्ट हो जाते हैं टू वार्मर प्लेसेस, लेकिन यहाँ पे वो हैप्पी प्रिंस को छोड़ना नहीं चाहता था. ही एट लास्ट न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई. अब उसको ये लगने लगा था कि वो मरने वाला है. द स्वेलो आस्क्ड द प्रिंस टू लेट हिम किस हिज हैंड. तो स्वेलो जो बर्ड था उसने बोला कि नाउ आई डाई सून, मैं कुछ जल्दी ही मरने वाला हूं, तो आई वॉन्ट टू किस योर हैंड्स, मैं आपके हैंड पे किस करना चाहता हूं. द प्रिंस टोल्ड हिम दैट ही वॉज हैप्पी, ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट. अब प्रिंस ने उसको बोला दैट ही वॉज हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश है कि वो कहाँ जा रहा है, वो इजिप्ट जा रहा है. सो ही टोल्ड हिम टू किस हिम ऑन द लिप्स. तो उसने क्या बोला कि तुम हैंड्स पे नहीं, तुम मेरे लिप्स पे किस करो. But the swallow told him that he was not going to Egypt. अब हैप्पी प्रिंस ने सोचा कि ये किस करने को बोल रहा है, क्योंकि ये कहाँ जाने वाला है, ये शायद अपने फ्रेंड्स के पास जाने वाला होगा. लेकिन उस बर्ड ने बोला कि आई एम नॉट गोइंग इजिप्ट, ही वॉज गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ विच इज इनएविटेबल. सबको एक दिन मरना ही है, तो वो कहाँ जा रहा है, उस डेथ के घर जा रहा है. नाउ मीन्स ही इज गोइंग टू डाई एंड ही फेल डाउन डेड. और वो जो बर्ड था वो मर गया. सो एट द मोमेंट देयर अपीयर्ड अ क्रैक इनसाइड द स्टैचू. और जैसे ही वो बर्ड की डेथ हुई, क्या हुआ, स्टैचू के अंदर कुछ क्रैक आ गया, स्टैचू अंदर से क्रैक हो गया. द हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस ब्रोक इनटू टू. अब इससे क्या हुआ, हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया. द डेड स्वैलो ले एट इट्स फीट. और वहां पे क्या था, जो डेड स्वैलो था वो उसके पाँव में गिरा हुआ था. द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड द टाउन काउंसिलर केम दैट वे. अब वहां पे क्या थे, सर्वे करने के लिए कौन आए थे, मेयर एंड टाउन के जो काउंसिलर्स थे, जो सलाहकार थे मेयर के, वो वहां पे आए देखने के लिए कि उनके सिटी में, उनके किंगडम में वहां पे क्या क्या कुछ हो रहा है उस सिटी में. दे लुक्ड एट द स्टैचू. उन्होंने उस स्टैचू को देखा. दे डिक्लेयर्ड दैट द हैप्पी प्रिंस वॉज नो लॉन्गर ब्यूटिफुल. कि पहले तो जो स्टैचू था वो बहुत सुंदर था, यहाँ पे लगा हुआ अच्छा दिखता था, लेकिन अब इस स्टैचू में कुछ भी नहीं है, ना तो रूबीज हैं, ना सफायर्स हैं, ना जो गोल्ड लीव्स हैं, कुछ भी नहीं है सुंदर, तो क्या करना. सो ही वॉज नो लॉन्गर यूजफुल. तो अब क्या है, अब ये स्टैचू हमारे किसी काम का नहीं है. देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस. तो इसलिए मेयर ने ऑर्डर दिया कि इस स्टैचू को मेल्ट करके पिघला दो. कहाँ पे डाल दो, फर्नेस में डाल दो. फर्नेस मीन्स होता है भट्टी. तो इस स्टैचू को डाल दो फर्नेस में, ताकि ये वहाँ पे मेल्ट हो जाए. एंड ये जो सिटी है, सिटी में ये बेकार सा स्टैचू है, इसको यहाँ से हटा दो. बट द ब्रोकन हार्ट डिडंट मेल्ट. लेकिन वो जो हार्ट था उसका, स्टैचू का जो हार्ट था वो मेल्ट नहीं हुआ. उस फर्नेस में बॉडी तो मेल्ट हो गई, लेकिन हार्ट वॉज स्टिल अलाइव. जो ब्रोकन हार्ट था वो मेल्ट नहीं हुआ, वो नहीं पिघला. इट वॉज थ्रोन अवे. इसलिए उस हार्ट को क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया दूर कहीं पे. सो गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स. गॉड ने क्या कहा, अपने एंजल्स को बोला, हियर गाइज दिस एच इज कैपिटल. हम एच या एच जब भी हम गॉड के लिए हिज या हर कुछ भी यूज करते हैं तो वो क्या होता है, वो कैपिटल आता है. ओके, सो गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग हिम द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग. हिम फिर किसके लिए आया, गॉड के लिए. कि गॉड को क्या चाहिए, दो बहुत ही प्रीशियस थिंग्स चाहिए उस सिटी से. अपने एंजल्स को बोला, उनको चाहिए किसको, गॉड को. तो बोथ एच एच आर कैपिटल. टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी. सिटी से दो कोई प्रीशियस थिंग्स चाहिए. द एंजल ब्रॉट हिम लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड बर्ड. तो क्या लेकर के आए वो वहां पे, लेडन हार्ट. जो हार्ट था, आपको पता है कि हार्ट जो था वो पिघला नहीं था, वो एज इट इज था. तो जो बर्ड्स, जो एंजल्स थे वो वहां गए सिटी में, एंड वहां से दो इंपॉर्टेंट थिंग्स लेके आए. कौन कौन सी, एक तो हार्ट of that happy prince that was broken, and another one the bird, the swallow.
So God told that in the garden of paradise the little bird would sing forever, and जो गॉड का गार्डन ऑफ पैराडाइज है, स्वर्ग का जो गार्डन है, वहां पे लिटिल बर्ड हमेशा हमेशा के लिए गाना गाएगा। लेकिन मीन्स उसको अमर कर दिया, बिकॉज ही डिड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, उसने सारे अच्छे काम किए, किस चीज के, दयालुता से भरे हुए। द हैप्पी प्रिंस वुड प्रेज हिम फॉर एवर इन हिज सिटी ऑफ गोल्ड, एंड हैप्पी प्रिंस की भी हमेशा प्रेज होगी। सो दीज वर टू थिंग्स। So in this next video, students, here in this video, I think you enjoyed it a lot, and the next video we will discuss all the question answers. So guys, stay connected with me. Thank you so much.